confusing, and we want to tell, the ruling party wants to tell to this country that the opposition is against women reservation bill. The opposition is not against women reservation bill. Opposition is with the women reservation bill. We are only asking 2023 we all accepted the women reservation bill. But n number of times I saw the speakers from the other side their idea is only to blame the opposition to score some brownie points from the people, diverting their attention. Yesterday I was listening to one of the speakers. Irrelevant matter. I don't know where it came from, the bifurcation of Telangana. Why is that he has to get that issue now when it has done years back in this esteemed house? Yesterday he was talking about the bifurcation comparing to India and Pakistan. It has been worse than what Britishers have done, he is saying about the bill passed in this house. So what respect we are giving to this house then? Supported by BJP. And again, 8 members of parliaments have been elected to this house from Telangana. None of them are raising the voice there. When somebody was talking against the organization and formation of Telangana, it is our responsibility to tell either the member is our side or the other side. But why are that everybody is quiet? And why is that one of the minister supporting him that he didn't do anything wrong? So I want to tell to this house that any bill which will be passed has to be discussed appropriately. Not take the relevance unnecessarily. Yes, our Chief Minister Sri Revanth Reddy ji has given an hybrid model. Yes, his suggestions, talking about logical thinking is not important here. First of all, taking the suggestions and trying to discuss here is very important. He said that pro rata, if at all it is giving 50%, why it should be 50% pro rata? They can take 50% from this, 50% from the performance of the state, GSDP. It is not that Telangana is going to benefit with that. It is a request and it is a suggestion to the House. Instead of taking only one way what you are talking, take the other way. What's wrong in that? Unnecessarily, one of the members from Karnataka yesterday was talking about everything because he wants to score some brownies from his leadership. That is fine with us. But not to blame leaders just because he wants to score some brownies. He was talking about Revanth Reddy ji's model. He was talking about the formation of Telangana. And I request, sir, through your chair, the words what he has spoken about Telangana should be removed from the records, and he should apologize for the state of Telangana, because that is not the right thing what he has done. It is not, sir, listen to me, sir. I had to say now, sir. From your party. Still there are so many speakers. No problem, sir. You have given me time. I am very thankful to you. I know there is no time for me, but your greatness has given time to me. I need to tell what is the facts here. So I don't have to talk much about the bill because it has already been discussed by n number of speakers about the bill, and I only want the opposition not to confuse the people of this country. Try to implement the bill which was done in 2023. We are okay with everything, but not the delimitation, not the extension of seats, which is their political agenda. Thank you very much, sir. Sri Neeraj Maurya ji. Sri Neeraj Maurya. धन्यवाद सभापति महोदय। आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे अपनी बात रखने का मुझे अवसर दिया। माननीय 131वां संविधान संशोधन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि नारी शक्ति वंदन विधेयक अभी 2023 सितंबर में ही हमारी दोनों संसदों ने पास किया, सर्वसम्मत से पास किया। अब जैसा पास किया था वैसा लागू करने में भाई क्या दिक्कत आ रही है? आज मतलब अगर सीटें बढ़ रही हैं तो आपको दिक्कत है? जी मान्यवर, गलत हो रहा है, हमें दिक्कत है। और जिस तरह से 523 में पास किया, आज फिर लेके संशोधन आ गए। मुझे तो भोजपुरी का एक गाना याद आ रहा है कि छिन छिन बदले तोहार मिजाज रजऊ। मान्यवर, यह संशोधन लाना ही था तो ओबीसी को भी शामिल कर लेते, तो नीक परिणाम आई ना। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने
सदन में कहा कि देश की जनता ने उनको दायित्व दिया है कि हम सबको साथ लेके चलें। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ी जात के, चाहे यादव हो, पटेल हो, शाक्य हो, मौर्य हो, अगर इसमें से कुछ लोग कथावाचक बन गए तो उनको अपमानित किया जा रहा है। मान्यवर, क्या वो इस समाज के नहीं है? सब उनका दायित्व तो नहीं है? मान्यवर, हम सब लोग देश की मातृशक्ति को संसद में देखना चाहते हैं। हम 33% ही नहीं, उनकी आधी आबादी है, उनको 50% आरक्षण दीजिए। हम इसके विरोध में नहीं है। महिला आरक्षण का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जब परिसीमन की बात, जनगणना की बात अगर स्पष्ट नहीं है, फिर जनसंख्या के आधार पे सांसदों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन क्या हमने कभी गंभीरता से सोचा कि जनसंख्या नियंत्रण? और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जो सत्ता पक्ष के हमारे सांसद है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इस तरीके से महिला के हित में बात कर रहे हैं कि जैसा लग रहा है कि महिलाओं के हितैषी सारे एक तरफ बैठे हुए हैं और इधर सब विरोध में बैठे हुए हैं। किंतु उन्हें इतिहास पता नहीं है कि मनुस्मृति में महिलाओं को क्या दर्जा दिया है, मनुस्मृति को मानने वाले कौन लोग हैं, ये पहले पता कर लो। इतिहास इन्हें पता नहीं है। कोई कलाकार खड़ा हो जाता है, कुछ भी बताता है, कोई कुछ खड़ा हो जाता है, कोई कुछ भी बताता है, लेकिन इतिहास क्या है? नारियों को सम्मान देने का काम किसने किया है इस देश में? यह मनुस्मृति में महिलाओं को क्या सम्मान दिया गया है? एक बार मनुस्मृति पढ़ के देखिए, बाद में आप संविधान पढ़ना, पहले मनुस्मृति तो पढ़ लो। इस संविधान ने महिलाओं को जो अधिकार दिया हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, और देश के पहले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू जी ने 1952 में महिलाओं को पुरुषों के साथ में वोट का अधिकार दिया, जबकि विश्व में महिलाओं को बहुत बाद में वोट का अधिकार मिला है। आप इतिहास पढ़िए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस देश में जब देश के पंतप्रधान मोदी जी यहाँ पे बोल रहे थे कि आज 27 लाख महिलाएं हमारे नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत में है। 27 लाख महिलाएं अगर पद पर है तो किसके वजह से है? वो नाम भूल गए थे। वो राजीव गांधी जी, उन्होंने दिया वो अधिकार महिलाओं को, इन्होंने नहीं दिया, ये सत्ता पक्ष ने नहीं दिया। उस समय राजीव गांधी जी ने वो अधिकार हमारे महिलाओं को दिया। आज बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब महिला सम्मान की बात आती है तो ये लोग इतने पीछे क्यों दिखते हैं कि बलात्कारियों का साथ देते हैं। इनके विधायक, सांसद बलात्कारियों का साथ देते हैं, उनका सत्कार करते हैं। हाँ, ये कैसा न्याय है अध्यक्ष महोदय? जी जी जी, बिल्कुल, मुझे पता था इनको तीखा लगेगा तो अब बुरा लगेगा, जो सच है वो बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा इस सदन में, ये देश की पहली राष्ट्रपति किस पार्टी ने दिया? संसद इस में देश को एक मिनट, ये संसद हमारे लिए बहुत बड़ा मंदिर है। ये संसद को बलात्कारों को सपोर्ट करे बोल के सभी सांसदों को, मेरा को नहीं, सभी सांसद को अपमान करे, इसमें डिलीट करना चाहिए, बहुत गलत है। कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। सर, अगर मैंने गलत बोलूंगा तो रिकॉर्ड से निकाल देना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस देश के पहली राष्ट्रपति इस देश को किस पार्टी ने दिया? देश की पहली पंतप्रधान इस देश को किसने दिया? लोकसभा स्पीकर महिला किसने दिया? पहली मुख्यमंत्री इस देश में किसने बनाया? और ये लोग बात करते हैं महिलाओं की। अध्यक्ष महोदय, समाप्त करें। आपको एक मैं खुद का उदाहरण दे रहा हूं आपको कि आज मैं सांसद कर यहाँ पे बोल रहा हूं, इस जगह एक महिला बोली होती, बस 2 मिनट बोलूंगा सर, मुझे पता है मुझे ज्यादा देर मिलने वाला नहीं, क्योंकि तीखे, जब जो तीखा बोलता है उसको ज्यादा समय मिलता नहीं है, लेकिन आपसे अपेक्षा करता हूं न्याय की। इस जगह एक महिला सांसद बोल रही होती, मेरी धर्म पत्नी, जिसके साथ अन्याय करने का काम वहां की राज्य सरकार बीजेपी की थी, 2024 में कांग्रेस पार्टी ने रश्मि बरुए को लोकसभा की टिकट दी थी, उसका जाति प्रमाण पत्र, सुनिए सर, एविडेंस है, ये देखो, कोर्ट में हाई कोर्ट तक के गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, स्टेट गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी हार गई। एक महिला को रोकने का काम पाप करने वाली सरकार ये है।